Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start lesson number 49, unit number 9. All is not lost. You know very well about the meaning. Abhi kuch nahi bigda. All is not lost. Must keep these points in your mind before going to understand any paragraph. Must keep these points in your mind. Okay? इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा. ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इनके मुताबिक अगर चलेंगे तो काम आसान होता चला जाएगा. Let's focus on the theme. Some people consider nursing as an underrated profession. It is not being valued like some other professions. दूसरे प्रोफेशन की निस्बत इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. So this story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse save patient from a near crippling stage. कैसे एक नर्स हो, चाहे वो नर्स हो या कोई भी हो, अगर वो ईमानदारी के साथ कोशिश करती है, पक्के अज़ाइम के साथ, तो वो किसी को भी मफलूज ज़िंदगी से बचा सकते हैं. Let's focus on these paragraphs. As I continued to work on Hira. मैं हीरा पर काम जारी रखा. But she was not making much recovery. लेकिन वो ज़्यादा बेहतरी नहीं दिखा रही थी. I felt as helpless. मुझे यूँ बेचारगी महसूस हुई as she was to see her lie on bed, जैसा कि उसको miserable state में बेड पर देखने से होती थी. Could I be able to justify my stance before the senior doctor? क्या मैं इस काबिल हो सकूंगी कि मैं अपना जवाब मौक़िफ़ पेश कर सकूं, सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने जवाब को बयान कर सकूं, अपने मौक़िफ़ को बयान कर सकूं. I did not lose hope. मैंने हिम्मत नहीं हारी. I continued to walk with patience. मैं मुसलसल काम जारी रखा सब्र के साथ and kept doing exercises with her. उसके साथ मुख्तलिफ मशकें करती रही. Gradually आहिस्ता आहिस्ता I could see her making a slight recovery. मैं देख सकी कि उसने थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है, थोड़ी सी बहाली दिखाई है. One day एक दिन I was thrilled. मैं बड़ी हैरान हो गई to see ये देख के. She lifted her little finger. उसने अपनी छोटी उंगली उठाई है. All was not lost. अभी कुछ नहीं बिगड़ा. I was sent on a 3 months training course to Karachi. मैं 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स के लिए कराची भेज दी गई. I made all possible attempts. मैंने अपनी पूरी कोशिशें की to leave my patient, कि मैं छोड़ जाऊँ अपने मरीजा को in good hands, अच्छे हाथों में. I returned after 3 months to see my patient's bed. मैं 3 माह के बाद जब वापस आई to see, ये देखने के लिए my patient's bed, अपने पेशेंट के बेड को taken up by another, जो किसी और को दिया जा चुका था. My feet froze to the ground. मेरे पाँव जमीन के साथ जम गए. यानी पूरी परेशानी की कैफियत है. I did not have the courage to ask. मेरे में इतनी हिम्मत और इतना हौसला भी नहीं था कि मैं पूछ सकूं. What happened? क्या हुआ? As I stood near the bed with several questions popping in my mind, जैसे ही मैं खड़ी थी उस बेड के पास तो मुख्तलिफ सवालात उभर रहे थे, नमूदार हो रहे थे, बन रहे थे in my mind, मेरे ज़हन में. I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने महसूस किया एक नरम थपकी, pat on my shoulder, अपने कंधों पर एक नरम थपकी महसूस की. I turned around, मैं मुड़ी and see, देखा young woman, एक नौजवान औरत को, smiling at me, जो मुझ पे मुस्कुरा रही थी. Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं? She said, उसने कहा, and gave me a big hug, और मुझसे बगलगीर हो गई. Thank you for everything you did. हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया. I know, मैं जानती थी you did not allow them, कि आप इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे to make me, कि मुझे ऐसा बना दें, lead a crippled life, कि मैं एक मफलूज ज़िंदगी गुजारूँ. I stood still. मैं अभी भी साकिन खड़ी थी until her family came around. यहाँ तक कि उसका खानदान हमारे इर्द गिर्द आ गया. With big smiles on their faces, उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें थी. Thank you Allah. Thank you Allah. अल्लाह का शुक्र है. She was my patient. यही मेरी मरीजा थी. Standing and walking on her own feet, जो खड़ी थी और चल रही थी अपने ही कदमों पर. I could not recognize her. मैं उसको ना पहचान सकी without the machinery, मशीनरियों के बगैर, and tubes around her body, और उन ट्यूब्स के बगैर जो उसकी बॉडी के गिर्द हुआ करती थी. She walked on crutches. वो बैसाखियों पर चलती थी. Which she would leave in few months. चंद महीनों में छोड़ देगी. I was glad, मैं खुश थी that my effort bore fruit, कि मेरी कोशिशें रंग ले आई हैं, फल दे दिया उन्होंने, मेरी मेहनतों ने हमें फ़ायदा पहुंचा दिया है. बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद की है
विना लोस्ट बैटल, एक नाकाम जंग के जीतने में। She and her family had entered into a considerable bond of friendship. वो उसका खानदान जो था वो दाखिल हो चुका था एक काबिल तारीफ बंधन में ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के। विद मी, मेरे साथ। आई वाज हम्बल, मैं आजिज थी। बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके एहसास तशक्कुर से टुवर्ड मी जो मेरे साथ कर रहे थे। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने महसूस किया अपने अंदर एक नई ताकत। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह यानी जहाँ मर्जी होती है देयर इज अ वे, वहीं पर रास्ता बनता है। जहाँ चाह वहाँ राह। आई वाज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे नर्स होने पे फख्र हुआ। I was proud to be a nurse, नर्स होने पे फख्र किया, फख्र था। So there are some difficult words you must try your level best to consult from dictionary and make it easy for you and then translate into Urdu. Look at these activities. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्योंकि अब वो सीनियर डॉक्टर से इजाज़त ले चुकी थी स्पेशली, और उस पर काम कर रही थी और उसको उसमें बेहतरी नज़र नहीं जब आई। उसने कैसे मैं अपना मौक़िफ़ जस्टिफाई कर पाऊंगी डॉक्टर्स के सामने। Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. ट्रांसलेट इनटू उर्दू। सेंटेंस को अच्छी तरह से चंक्स में डिवाइड करें और ट्रांसलेट करें। आई रिटर्न्ड आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड। आई डिडंट हैव करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, सो फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड देन ट्रांसलेट इनटू उर्दू। क्लियर? Look at the second activity. Why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctor? नर्स ये कहने पर क्यों मजबूर हो गई थी अपने आप को? क्यों ये नर्स उसको अपने आप को ये सवाल करना पड़ा कि क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने मौक़िफ़ को जस्टिफाई जवाब को पेश कर सकूंगी? Describe some qualities of the nurse in this story. इस कहानी में जो आपको नर्स की क्वालिटीज नजर आ रही हैं उनको बयान करना, उनकी एक लिस्ट बनानी है। Why did the nurse say? नर्स ने ये क्यों कहा था? Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ इंसान का इरादा, डिटर्मिनेशन, नीयत होती है वो काम हो जाता है। ऐसा कहने की नौबत उसे क्यों आई? क्योंकि उसने अपने पेशेंट को सही होता हुआ देख लिया था, सेहतमंद होता हुआ देख लिया, उसकी मेहनतों ने रंग ले आई थी। So better try your level best to solve these activities with full concentration and see the paragraphs also to try then you can make these activities easy for you. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.